students of class 3. Students, I'm sure all of you are well and in a joyful mood, ready for your English class. Students, today I'm going to continue with Unit 9 of your English grammar books. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 37. Page number 37, Unit 9, Simple Present Tense. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 37, Unit 9, Simple Present Tense. Students, in my last video, I was explaining exercise 1 given on page 37, that is, choose the correct verbs and fill in the blanks. And student, we had done till the 7th sentence. Now today, before continuing, I would like to revise these 7 sentences of exercise 1. So please listen to me carefully and tell me your answers of the first 7 sentences. The first exercise, that is, choose the correct verbs and fill in the blanks. There are 2 options given in the brackets and we need to choose the correct option as per the subject-verb agreement. So the first one, my friend plays tennis. Children, please write plays in the first blank. My friend plays tennis. Second, my cousins dash vegetable soups. Please write like. My cousins like vegetable soup. Please write like, L-I-K, in the second blank. The third one. I dash my parents. I respect. R-E-S-P-E-C-T. Please write respect in the third blank. I respect my parents. Then the fourth one. She dash her clothes in the cupboard. Please write keeps. K-E-E-P-S, keeps. She keeps her clothes in the cupboard. Fifth, Rashid dash his work regularly. Does. D-O-E-S, does. Rashid does his work regularly. The sixth one, children dash their teachers. Please write obey. O-B-E-Y, obey. Children obey their teachers. Then the seventh one, we always dash our friends. Please write help. H-E-L-P, help. We always help our friends. Now students, you need to keep in mind that if your subject is plural or I or you should write the root form of the verb. Whereas if your subject is singular, you should add S or ES to the root form of the verb. Now children, I'll be continuing with the 8th sentence. The 8th sentence, children, is he dash kites. And the options given are fly, oblique, flies. We have got 2 options. Now, first of all, children, please look at the subject. The subject is he, singular pronoun. We are talking about one person. So, what we have to do? In this blank, students, we have to add S or ES to the root form of the verb. And root form of the verb, children, is fly. F-L-Y, fly. And when we add, इसमें हम क्या करेंगे बेटा? He है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? I-E-S वाला, flies. So we'll write he flies. He flies kites. Students, one thing to keep in mind. This is the root form of the verb fly. And when we want
दिस वी कैन नॉट एड, हम बेटा इसमें एस भी नहीं ऐड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, और इसमें हम ईएस भी नहीं ऐड कर सकते हैं। इसका प्लूरल क्या होगा बेटा, FLIES, फ्लाइज। इसका ये फ्लाई का जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो जो प्लूरल वाला फ्लाइज वाला IES होता है, यही इसमें लगता है। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है, कि रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम एस भी नहीं लगा सकते, ES भी नहीं लगा सकते। जो फ्लाई मक्खी वाला फ्लाई होता है, यर फ्लाई इज मीन्स उड़ना। अभी फ्लाई हैज गॉट टू मीनिंग्स, एक नाउन वाला मीनिंग होता है बेटा और एक वर्ब वाला मीनिंग। यहाँ पे फ्लाई हमने वर्ब लिया है, वर्ब मीन्स दी एक्शन, ठीक है, उड़ना। एंड एक फ्लाई होता है मक्खी, तो जो नाउन का जो प्लूरल होता है FLIES, फ्लाइज, वही फ्लाइज इसका रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में IES हम ऐड करेंगे। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो ही फ्लाइज काइट, तो इसके रूट फॉर्म में जब हमें S और ES नहीं ऐड कर सकते, इसमें हमको क्या ऐड करना है बेटा, IES। गॉट इट? So, he flies kites. Got it? he यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ रूट फॉर्म में y हटा के हमने क्या लगाया, IES। एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, फ्लाई के दो मीनिंग होते हैं, एक वर्ब वाला मीनिंग होता है, एक नाउन। एक फ्लाई मतलब उड़ना, एक्शन, दैट इज दी वर्ब, while the other fly is मक्खी, दैट इज नाउन। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ हम फ्लाई वर्ब ले रहे हैं। Got it? So he flies kites. I hope all of you have done, children. Please write fast. Now I'll erase and then write the next one. Now the 9th one. You dash your hair nicely. And the options given, children, are comb, oblique, combs. कंघी करने को बेटा कोम बोलते हैं, कंघी करने को भी कोम बोलते हैं और कंघी को भी कोम बोलते हैं। सो यहाँ पे अब यू है। सो व्हाट वी हैव लर्न इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चिल्ड्रन, इफ our subject is you, I और plural, तो हम कौन सा बेटा verb का फॉर्म यूज करते हैं, रूट फॉर्म ऑफ दी verb, उसमें s और es कुछ भी नहीं लगेगा। so you comb your hair nicely, whereas you की जगह अगर she होता बेटा, for example, तो हम क्या लिखते, she combs her hair nicely. Got it? she होता, he होता, कोई नेम होता, सिंगुलर पर्सन होता, तो हम क्या यूज करते बेटा, combs। बट यहाँ पे you है, I के साथ, you के साथ, एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एंड रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है बेटा, comb, उसमें SES कुछ भी नहीं लगेगा। सो प्लीज कीप दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन माइंड, चिल्ड्रन, कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, आई हो, यू हो, तो हम हमेशा वर्ब का रूट फॉर्म ही यूज करते हैं। ये बेटा आपको सारे बच्चों को ये चीजें याद रखनी है कि हमको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है। गॉट इट? ओके, सो यू कॉम्ब योर हेयर नाइसली। I hope all of you have written you comb your hair nicely. You comb your hair nicely. Again I am repeating, with you, I and all plural subjects हम root form of the verb भी use करते हैं। Got it? Now I am going to erase and write the 10th one. सम्राट dash to school
by bus. And the options given are go, oblique, goes. Got it? Now, Samrat dash to school by bus. And the options are go. Go is the root form. And here root form में es लगा हुआ है. Now, first of all, we need to look at the subject. Subject is what, children? The one who is performing the action. Now, Samrat dash to school by us. तो यहाँ पे Samrat क्या है बेटा? Subject. Why subject? Because Samrat is the one who is doing an action. तो Samrat singular है. से जब हमारा subject singular होगा तो what is the subject verb agreement, children? कि हम root form of verb में s और es use करेंगे depending upon the spelling. तो यहाँ पे कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे बेटा? goes. So Samrat goes to school by bus. And ये हमने क्यों सेलेक्ट किया बेटा goes? Because Samrat is the name of a person and ये क्या है बेटा? singular है. So Samrat goes to school by bus. Whereas अगर यहाँ पे होता बेटा I dash to school by bus और you होता. Now you need to know कि कहाँ पे सिंगुलर है, कहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है. Accordingly you need to use the form of the verb. Whereas अगर यहाँ पे होता she. Now look at the difference, children. हर all में हमको अगर go word दिया है, तीनों में हमको go भरना है. तो now I के साथ you के साथ हमेशा and plurals के साथ आपको root form of verb. तो हम क्या लिखते बेटा? I go to school by bus. Our sentence would have been I go to school by bus because the subject verb agreement says कि अगर आपका सब्जेक्ट I है, you है या कोई प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे. तो हम I के साथ क्या यूज करेंगे? go. Then second, you dash to school by bus. अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका you हो तो भी आप क्या यूज करेंगे बेटा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. So you go to school by bus. But अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे सम्राट था यहाँ पे she है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? रूट फॉर्म में es हमने लगा दिया. तो she goes to school by bus. तो बेटा यही आपको याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब के फॉर्म में s या रूट फॉर्म में s और es लगाना है. Whereas if your subject is plural, I और you है, तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है बेटा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसमें s और es नहीं ऐड करना है. Now if you keep this in mind, children, you will not have any problem in doing the exercise of simple present tense. So please write goes in the 10th sentence. Samrat goes to school by bus. I hope all of you have done, children. Now we have finished exercise 1 and I'm going to start with exercise 2. Let's see what does exercise 2 says. Now exercise 2. Fill in the blanks with the correct form of given verbs in the simple present tense.
Now students, this exercise says that some sentences are given with a blank and there is a verb given in the bracket. अब उस वर्ब का हमको करेक्ट फॉर्म यूज करना होगा ब्लैंक में. सब्जेक्ट देख के बेटा हमको डिसाइड करना होगा कि कहाँ पे हमको रूट फॉर्म लगाना है और कहाँ पे रूट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करना है. दैट इज हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल क्या कहता है कि वर्ब का अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई हो, यू हो, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो बेटा, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट की जगह बेटा यू हो, सब्जेक्ट की जगह आई हो, तो हम क्या यूज करेंगे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Whereas अगर हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन सिंगुलर है, इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही, शी, कुछ भी हो, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या ऐड करेंगे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ऑब्लिक ईएस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग. बस सबको ये याद रखना है, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यू और आई, हमको क्या यूज करना है बेटा, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट मीन्स कि उसमें कुछ भी एस ईएस नहीं लगाना है. और हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ही है, शी है, कोई नेम है, वो सब सिंगुलर है. हाँ, मतलब हम किसी वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस ऐड करना है. बस you need to keep this thing in mind, and if you keep this thing in mind children, you will not find any problem. Now let's see what the first sentence says. The first sentence is Sarthak dash in every competition, and the word given in the bracket is children participate. Participate करना मतलब किसी भी चीज में हिस्सा लेना, भाग लेना. Fine. Now this is the sentence. Sarthak dash in every competition, and the word given in the bracket is participate. So beta, first of all what we have to do, we have to look at the subject. Now the subject, who dash in every competition, you are talking about Sarthak. Sarthak is the one who is performing the action. तो सार्थक कौन है, हमारा सब्जेक्ट है. तो सार्थक इज सिंगुलर. सार्थक क्या है, सिंगुलर है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. तो हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहां पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस और ईएस लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग. तो बेटा अभी द स्पेलिंग ऑफ पार्टिसिपेट, पहले आप सीधे सीधे स्पेलिंग लिख लो. PARTICIPE, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ पार्टिसिपेट. और इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे. सेम स्पेलिंग लिख के इसमें क्या लगाना है, एस लगाना है. यहां हमने एस क्यों लगाया, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. तो हमारा सेंटेंस अब क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सार्थक पार्टिसिपेट्स इन एवरी कंपटीशन. सार्थक क्या था बेटा, हमारा सिंगुलर था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है. वी आर टॉकिंग बिकॉज एक है ना बेटा. लेकिन सार्थक की जगह अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता द चिल्ड्रन, सार्थक की जगह अगर यहाँ पे हमारे पास द चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट होता, द चिल्ड्रन डैश इन एवरी कंपटीशन. अगर हमारा सब्जेक्ट सार्थक तो सिंगुलर था, बट सार्थक की जगह चिल्ड्रन द चिल्ड्रन होता या आई होता, आई डैश इन एवरी
कंपटीशन। तो हम इन दोनों में कौन सा फॉर्म यूज करते बेटा? एज पर द रूल द चिल्ड्रन, प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता, फॉर एग्जाम्पल सार्थक की जगह, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? द चिल्ड्रन पार्टिसिपेट, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कोई एस वेस नहीं ऐड करते, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते, तो हम पार्टिसिपेट एज इट इज लिखते। व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट वाज प्लूरल। Then the second sentence example is I dash in every competition. I के साथ भी हम क्या यूज करते बेटा? हम participate ही यूज करते। अगर you होता तो उसके साथ भी हम क्या यूज करते बेटा? Participate. I participate in every competition. The children participate in every competition. Why? Because the rule subject verb agreement rule says कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट I है और अगर you भी होता I की जगह, तो हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। बट इन सेंटेंस 1 आवर सब्जेक्ट इज सार्थक। सेंटेंस 1 में हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? सार्थक है। एंड सार्थक सिंगुलर है। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हुज नेम इज सार्थक। तो द रूल सेज कि आपका जो रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसमें क्या लगेगा बेटा? एस लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सार्थक पार्टिसिपेट्स इन एवरी कंपटीशन। तो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस और ईएस लगाना है। वेयरएज अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता, आई होता, यू होता, तो हम क्या करते? खाली रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते, उसमें एस नहीं लगाते। बट सिंस आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो यहाँ पे अगर एस नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब में एस लग जाएगा इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आवर सेंटेंस विल बी सार्थक participates in every competition. So please write participates, जो ब्रैकेट वाला वर्ड है बस उसमें आपको एस लगाना है। PARTICIPATES। प्लीज राइट फर्स्ट सार्थक पार्टिसिपेट्स। बेटा पार्टिसिपेट करना मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना। सो सार्थक पार्टिसिपेट इन एवरी कंपटीशन। ब्रैकेट में पार्टिसिपेट दिया है, उसी की स्पेलिंग को लिख के उसमें आपको क्या ऐड करना है बेटा? एस। डन। नाउ द सेकेंड सेंटेंस। We dash the Children's Day on 14th November, and the verb given in the bracket is celebrate. Now our sentence is children, we dash the Children's Day on 14th November. Fine. Now first what we have to do, we have to look at the subject. हमको किसको देखना है बेटा? सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। वी मतलब मोर देन वन। हाँ, हम बहुत सारे लोग, एक से ज्यादा। तो वी क्या है? प्लूरल है। तो एज पर द रूल ब्रैकेट में हमारा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, इसमें हम क्या लगाएंगे? एस और एस लगाते हैं? नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी क्या है बेटा? प्लूरल है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम क्या करते हैं? हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब? सेलिब्रेट एज इट इज। वी सेलिब्रेट द चिल्ड्रंस डे ऑन 14th November। बट अगर यहाँ पे वी की जगह अगर सपोज एक नेम होता, लेट्स टेक स्मिता फॉर एग्जाम्पल,
अगर यहाँ पे स्मिता होता और द सेम सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते बेटा? सपोज सेम सेंटेंस होता विद द नेम स्मिता, स्मिता डैश दी चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। अगर यहाँ पे वी की जगह अगर कोई एक सिंगुलर होता हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखते? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड में क्या लगाते बेटा? एस। स्मिता सेलिब्रेट एज इट इज, और उसमें हमने क्या लगा दिया? एस। स्मिता सेलिब्रेट्स द चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। बट हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, इसलिए हमने एज इट इज रूट फॉर्म को लिख दिया। बट अगर वी की जगह कोई भी नेम हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो आप क्या यूज करोगे बेटा? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे बेटा? एस लगाओगे। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड दैट स्मिता सेलिब्रेट्स द चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर। यहाँ अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आप क्या लगाओगे? एस। ये आपको बेटा याद रखना है। सो इन दी सेकेंड चिल्ड्रन, प्लीज राइट द वर्ड सेलिब्रेट एज इट इज गिवन इन दी ब्रैकेट. दिस इज द root form. Our sentence will be, we celebrate the Children's Day on 14th November. I hope all of you have done. Now I'm going to erase it and write the third one. Third, Sneha dash milkshake every morning. And the word given in the bracket, children, is drink. This is the root form of the verb. Now, first what we have to do? We have to look at the subject. Our subject is Sneha who is doing the action. और जो भी action करता है वो subject होता है, और जो action होता है वो क्या होता है? verb होता है. Fine. अब simple present tense का rule क्या? If the subject is singular, हम verb में s और es लगाएंगे. यहाँ पे हमारा subject क्या है बेटा? स्नेहा है. हमारा subject क्या है? स्नेहा है. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारे रूट वर्ब का रूट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? एस, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना? हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. स्नेहा इज द नेम ऑफ वन गर्ल और अ वुमन. सो स्नेहा, यहाँ पे हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे और हमने वी हैव एडेड एस. व्हाई डिड वी ऐड एस? बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमको वर्ब में क्या ऐड करना है? एस करना है. गॉट इट? सो आवर सेंटेंस विल बी स्नेहा ड्रिंक्स मिल्कशेक एवरी मॉर्निंग. स्नेहा ड्रिंक्स मिल्कशेक एवरी मॉर्निंग. वेयरएज अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कोई प्लूरल होता है, फॉर एग्जाम्पल स्नेहा की जगह अगर यहाँ पे सपोज होता वी डैश milkshake every morning. सपोज हमारा सेंटेंस होता we dash milkshake every morning. अगर स्नेहा की जगह यहाँ पे we होता तो हम क्या करते? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो हम ड्रिंक को एज इट इज लिख देते. इसमें हम एस नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लूरल है. बट स्नेहा सिंगुलर है तो हमने ड्रिंक में एस लगा के ड्रिंक्स बना दिया. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, तो वी अगर होता तो हम खाली ड्रिंक लिखते. सो आपको बस ये बेटा यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हम वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करेंगे. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है
और वी की जगह अगर आई भी होता तो आप क्या लिखते हैं? आई ड्रिंक मिल्क शेक एवरी मॉर्निंग। अगर यू होता तो भी आप लिखते यू ड्रिंक मिल्क शेक एवरी मॉर्निंग, बिकॉज रूल कहता है अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, यू है, तो आपको रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज लिखना है। वेयर एज अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको रूट फॉर्म में क्या लगाना है बेटा? एस लगाना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? स्नेहा ड्रिंक्स मिल्क शेक एवरी मॉर्निंग। बेटा ड्रिंक में एस लगाइए और ये आपका वर्ब क्या हो गया? ड्रिंक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आवर सेंटेंस विल बी स्नेहा ड्रिंक्स मिल्क शेक एवरी morning. Done? I hope all of you have done, children. Now, students, that's all for today. Now, rest of the sentences I'll be continuing in my next video. Please revise exercise 1. Thank you, students. Have a good day ahead.